میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 106 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ فکر و فن شعر و سخن کو ایک طرف ایسے غیر معروف شعراء و ادباء کو پیش کرنے کا موقع ملا جن کی شہرت بعد میں عالمی سطح تک پہنچ گئی، اور اسی طرح فکر و فن شعر و سخن کو ایسے باکمال قلمکار بھی میسر آئے جن کو فکر و فن شعر و سخن پر پیش کرنے کے بعد فکر و فن شعر و سخن کی عالمی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں جن کی عالمی شہرت سے فکر و فن شعر و سخن کی مقبولیت و نیک نامی میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، گلبرگہ کرناٹک سے تعلق رکھنے والے محترم منظور وقار صاحب آج فکر و فن شعر و سخن کے مہمان گرامی قدر ہیں، جو ایک خاکہ نگار، افسانچہ نگار، افسانہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں، اور طنز و مزاح نگاری میں تو کرناٹک میں فی زمانہ ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کے ادبی سفر کے ساتھ ساتھ دیگر ادبی موضوعات پر ان سے آج ہم راست گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ان کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کو بڑی عجیب و غریب لگے گی کہ منظور وقار صاحب میرے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش 1953 دسمبر کی ہے اور ہم 1954 مئی میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ ہمارے بزرگ قرار پاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں غضب کا قلم عنایت فرمایا ہے۔ آپ ان کے سامنے ایک گلاس یا کپ رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ منظور صاحب اس پر ایک مضمون درکار ہے، تو 10-15 صفحات کا وہ نہ صرف مضمون لکھ دیں گے بلکہ اسے ظرافت کا درجہ بھی لگا دیں گے۔ یہ قابلیت خدا داد ہے۔ وہ 18 سال کی عمر سے ہی لکھ رہے ہیں، اور ان کا پہلا افسانہ انسانیت کی موت 1971 عیسوی میں خواجہ ہائی اسکول کی میگزین شاہین میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، خوب لکھا، خوب لکھتے رہے، اور آج بھی ان کا قلم مسلسل لکھ رہا ہے۔ ابتدائی سے موصوف کی طبیعت کا میلان طنز و مزاح کی طرف ہی رہا۔ پہلا طنزیہ و مزاحیہ مضمون معذوروں کا سال ماہنامہ شگوفہ حیدرآباد میں شائع ہوا۔ پچھلے 40 برسوں سے افسانے، افسانچے، طنز و مزاح سے متعلق تخلیقات، خاکے اور تبصرے ملک و بیرون ملک کے رسائل اور اخبارات میں تواتر کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ مطبوعہ تخلیقات کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں میں ہے۔ انہیں مختلف انجمنوں اور اداروں نے متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، جن کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے، جن میں 4 قومی سطح کے ایوارڈز، 3 ریاستی سطح کے ایوارڈز شامل ہیں۔ ان کی تصانیف تاحال 5 کی تعداد میں ہیں، اور مزید 10 تصانیف زیر اشاعت ہیں۔ عزیزی محمد مردان منظور وقار کی قلمی جہتیں کے عنوان سے ڈاکٹر سلیمہ بی کولور صاحبہ کی رہنمائی میں کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ سے PhD کر رہے ہیں۔ اس سے منظور وقار کے وقار و دبدبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے ان سے انہی کی زبانی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلے سوال سے پہلے وقار صاحب کی نظر یہ 3 شعر پیش ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جھلکتی نو کی قلم سے ہے تمکنت ان کی، جھلکتی
नौ के कलम से है तमकिनत इनकी, बयान कैसे करूं शान व मर्तबत इनकी, बयान कैसे करूं शान व मर्तबत इनकी। मज़ाह व तंज़ के मैदान में पुरवकार रहे, मज़ाह व तंज़ के मैदान में पुरवकार रहे, मुसद्दक़ा रही तौक़ीर व मंज़िलत इनकी, मुसद्दक़ा रही तौक़ीर व मंज़िलत इनकी। वक़ार तंज़ ही मंजूर था हमेशा इन्हें, वक़ार तंज़ ही मंजूर था हमेशा इन्हें, वक़ार तंज़ ही मंजूर था हमेशा इन्हें। मज़ाह में आज भी कायम है सल्तनत इनकी, मज़ाह में आज भी कायम है सल्तनत इनकी। मोहतरम वक़ार साहब, हमने आपके बारे में जो कुछ कहा, इसके अलावा आप अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यानी ये कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र, कलमकारी का पस मंज़र वग़ैरह, नीज़ आपके पसंदीदा तंज़ो मज़ाह निगार और आपके पसंदीदा अफसाने निगार कौन कौन से हैं और किन किन शख्सियात से आप मुतासिर हुए? मोहतरम अजीज़ बेलगामी साहब का ममनून हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कलमकार को, छोटा सा कलमकार के अभी कलमकार बनने के मराहिल में हूँ मैं मुझ नाचीज़ को सीधी बात जैसे एक मकबूल और मारूफ टीवी चैनल के रूबरू मुझे बिठाया। मुझे जानकर बेहद मसरत हुई कि इस टीवी चैनल के 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। माशाअल्लाह, मुझे आज मसरत और फ़ख्र का एहसास हो रहा है कि इतने अहम और मकबूल प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले मेरा ख़ानदानी पस मंज़र ये बताऊँ कि हमारे ख़ानदान में जो है कोई शायर अदीब वगैरह नहीं गुजरा। जो कुछ भी अदब शायरी जो कर रहा हूँ मैं एक अकेला फ़र्द हूँ, आज भी एक मैं अकेला फ़र्द हूँ। अलबत्ता मेरे वालिद, मेरे चचा वगैरह जो है उस दौर में, मैं बचपन में जब SSLC में पढ़ता था तो कुछ मैगज़ीन जो है दीन दुनिया, खातून मशरिक़ और कुछ तारीख़ी किताबें उर्दू के आया करते थे। हमारे वालिद एक्साइज डिपार्टमेंट में नंबर अंदाज थे मेरे अब्बा, तो वो उनको तारीख़ी नावल हैं जैसे अकबर, शाहजहाँ की तारीख़ी कहानियों की किताबें आते थे और दीन दुनिया का रिसाला उस ज़माने में हमारे अब्बा लेते थे और चंद एक उस दौर के अखबार सियासत हैदराबाद के रहनुमा दखन हमारे पास आया। तो पढ़ते पढ़ते मुझे उर्दू कहानियों का शौक़ हुआ। जब मैं SSLC में आया ख्वाजा स्कूल में तो हमारे एक बहुत ही अच्छे उस्ताद जो अदब इल्म से बहुत वाकिफ़ थे और उनसे बड़ा लगाव था, सादुद्दीन कुरैशी उनका नाम। मैं उनका ममनून हूँ आज भी कि उन्होंने सबसे पहले मेरे अदबी ज़ौक़ को देखकर, मैं उस दौर में SSLC में भी इब्न सफ़ी के नावलें, कृष्ण चंद्र को और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ऐसे कलमकारों को पढ़ा करता था। मैं बड़े शौक़ था SSLC में। तो मेरे इस मुताले के ज़ौक़ को देखकर हमारे उस्ताद सादुद्दीन कुरैशी साहब ने मुझसे कहा कि हमारे स्कूल का एक मैगज़ीन छप रहा है, उसका उन्वान है इंसानियत की मौत। उन्होंने बोला एक कहानी लिखी है। तो मैं जब वो कहानी लिखा तो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी उसके अंदर थे। उस कहानी का पस मंज़र ये था कि आज़ादी के बाद कहानी एक साहब सुना रहे हैं, आज़ादी के वक्त जब थे वो मेरे सामने सुना रहे हैं, हम बच्चों के सामने, कि आज़ादी के बाद हिंदू मुसलमान फिसादात का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, खून खराबे का। तो वैसे वक्त में कुछ एक गौल हिंदू लोगों का, उनके एक दोस्त होते हैं रहमान साहब, अशोक के दोस्त रहमान, तो पड़ोसी, तो उन पे जब गलबा आता है तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे के दरवाजे से अपने घर में लेकर जाते हैं हिंदू अशोक के रहमान साहब को। तो होता है कि भाई रहमान साहब के घर पर भी मालूम होता है कि आए तो कुछ हिंदू नौजवान जो है वहाँ पर हमला करने के लिए उनके अशोक के घर पर आते हैं कि निकालो घर से बाहर, उन्हें बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा तो फ़ौरन क्या उनको जो है पीछे के दरवाजे से एक ऐसे मकाम पर ले जाते रहते हैं कि छुपाने के लिए, छुपा कर उनको आते हैं। तो जब हमला खुद हिंदू नौजवान जो है उन पे करके वो अशोक का इंतकाल हो जाता है। तो बाद में जब व्यान जब आती है पुलिस की, व्यान आके उनकी लाश को, अशोक की लाश को जो है व्यान में डालकर जब ले जाते रहते हैं तो वो जो छुप के खड़े हुए रहते हैं, जिनकी जान अशोक बचाया रहमान साहब, देखते हैं कि व्यान में वो लाश जारी है उनके दोस्त की। तो जब बोलते हैं ये लाश हिंदू की है, मुसलमान की है, क्रिश्चियन की है, ईसाई की है या इंसानियत की है। क्या बात है, क्या बात है। तो इतना खुश हुए हमारे साधन साहब, मुझे पीठ थपके
बोले आप कलम पकड़िए, अफसाने वगैरह लिखिए। जब से शौक पैदा हुआ और मुसलसल लिखता रहा। माशाल्लाह मंजूर साहब, आपने बहुत ही दिलचस्प रुदात छेड़ी। आपके मज़ाहिया मज़ामिन की जी जी माहनामा शगुफा ने बड़ी जी जी पजीराई की थी, जी जी तो इस हवाले से जी मुदीर मोहतरम डॉक्टर जी मुस्तफ़ा कमाल साहब की खिदमत पर, जी आपके तासुरात या जी आपकी यादों पर जी अगर कोई मुश्तमल रुदात हो तो आप इनायत करें। जी, जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल साहब है, उनकी जो तंज़ुम-ए-निज़ाम में जो खिदमात हैं, मैं तो उन्हें मुदीर शगुफ़ा नहीं कहता, वो मिज़ाहगीर हैं। वो अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में तंज़-ओ-मिज़ा, चाहे शेर हो या नसर हो, उसको जो है मकबूलियत दिलाने में उनका जो कारनामा है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में आज उनका जैसा खिदमत जो तंज़-ओ-मिज़ा की करे कोई शख्स या कोई शख्सियत ताहाल मेरे नज़र में नहीं है, और आइंदा भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अवध पंच के बाद, जी अवध पंच जो तंज़-ओ-मिज़ा की एक तंजीम थी, उसका रिसाले भी निकलते थे। उसके बाद अगर सारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड अरबी दुनिया में अगर कोई रिसाला मकबूलियत हासिल का है तंज़-ओ-मिज़ा का, तो वो है माहनामा शगुफ़ा। माहनामा शगुफ़ा आज 55 साल से मुसलसल शाये हो रहा है, क्या बात है। बिला नागा एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ताख़ीर हुई इशात में, बिला नागा 53-55 साल से शाये हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है मुस्तफ़ा कमाल साहब का। शगुफ़ा के ज़रिए अगर मुझे कोई तंज़-ओ-मिज़ा के तौर पर कोई पहचानते हैं, उसका क्रेडिट शगुफ़ा ही को जाता है। मंजूर भाई, ये जो आप खराज जी तहसीन जी पेश कर रहे हैं, वो वजह तौर पर जी उसके मुस्तहिक़ हैं। जी आप चूँकि एक मज़ाह निगार जी जी और तंज़िया निगार हैं, जी तो हमारे क़ारीन के लिए, हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए जी ये बताएं कि ये तंज़ो मज़ाह की जो तरकीब जी अक्सर इस्तेमाल होती है, जी लेकिन इन दोनों अल्फाज के फ़र्क को हाँ बहुत कम लोग समझते हैं। जी जी आप चूँकि तंज़ो मज़ाह निगार हैं, तो मैं आपकी मालूमात को मुस्तक़ा समझते हुए जी अपने नाज़रीन की नज़र करना चाहता हूँ। इन दोनों अल्फाज के माबैन फ़र्क को आप कैसे बयान फरमाएंगे? जी, तंज़ वो चीज़ है जो पढ़ने वाला, जिस पर तंज़ किया जाता है, जिस शोबे पर, जिस शख्सियत पर या जिस बेइत्तेदाली पर जो तंज़ किया जाता है, जी। पढ़ने वाले को एक झटका सा लगता है कि क्या तंज़ है क्या साहब। बात है। बोलता पढ़ने वाला कारी बोलता है क्या तंज़ है साहब, क्या बात है, क्या तो झटका लगता है। मिज़ाह वो है कि मिज़ाह पढ़ने के बाद खारिज अगर सो भी गया है तो मुस्कुराता है। मुस्कुराता है। बहुत सही कहा। मिज़ाह ऐसी चीज़ है, मन ही मन में मुस्कुराता है। क्या बात कही है। सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूँ अगर कोई सख्त और संजीदा आदमी भी है, जब मज़ाहिया जुमला जो मिज़ाह है पढ़ने के बाद कम से कम उसके होठों पर मुस्कुराहट तो ज़रूर आती है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। लेकिन क्या सबब है जी कि फी ज़माना जी बहुत कम कलमकार जी तंज़ो मज़ाह की जी जी जानिब मुतवज्जो नज़र हाँ, आते हैं? इसकी एक वजह यह है कि मैं समझता हूँ, हालांकि तंज़-ओ-मिज़ाह इस दौर में बहुत मकबूल है। आप टीवी सीरियल, फिल्में और बहुत सारी चीज़ें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देखेंगे, आप तंज़-ओ-मिज़ाह से ज़्यादा रहते हो तंज़-ओ-मिज़ाह के मज़ाहिया। लेकिन अदब में एक ड्रामा मज़ाहिया लिखना या एक्टिंग करना बहुत आसान है। बिल्कुल। एक शख्स स्टेज पे ठहर कर एक दो चार लतीफ़े बोलकर पूरे महफिल को खैखाजार कर देता कर है। सकता है जी। लेकिन जब अदब लिखते हैं हम तंज़-ओ-मिज़ाह के नाम पर, वो बड़ा मुश्किल फ़न है। यकीनन। उसमें दो तीन चीज़ों को हम बहुत गौर करना पड़ता है लिखते वक्त में। क्या है उसमें, फ़ाहिश निगारी ना आए, बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि मिजाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्या बात है, ये बहुत चंद मैंने खाके भी लिखे हैं। मेरे मिजाज में उनकी हरकत सकनात, उनके जो है बातें होते हैं, उनकी चाल चलन गुफ्तगू को मैं तंज़-ओ-मिज़ाह में लेता हूँ, और वो इतना पसंद करते हैं। वो तंज़-ओ-मिज़ाह में लेने के बावजूद वो साहिब खाका को बहुत महसूस होता है और बहुत पसंद करते हैं। तो वो एक कमाल है। हाँ, एक स्टाइल ऐसा है तंज़-ओ-मिज़ाह का कि तंज़ के बावजूद भी जिस पे तंज़ किया जा रहा है वो नाराज़ ना हो, मिज़ाह के बावजूद भी जिसका मिज़ाह बना जाए वो नाराज़ ना हो, बल्कि वो तारीफ़ करके कितने अच्छे अंदाज में, किस उसलूब में इन्होंने लिखा है। तो इस फन तक आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारे
कलमकार कोशिश भी कर चुके हैं तंज़ुम मिज़ाज, लेकिन कुछ बात नहीं बनी तो वो हट गए। अब ये अफसाना का मामला जो है, मैं समझता हूँ अजीज़ बलगामी साहब, जिस तरह उर्दू शायरी में गज़ल शायरी के माथे का झूमर है, अच्छा जी, इसी तरह अदब में अफसाना नसर के माथे का झूमर है। बहुत सही कहा आपने ज़रूर। आप इसको हटकर आप रुबाई लिख रहे हैं, आप हट के नज़में लिख रहे हैं, आप अफसानचे लिख रहे हैं, तंज़ुम मिज़ाज लिख रहे हैं, तनखीद लिख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अफसाने के बाद की चीज़ें हैं। क्या बात है, बहुत सही बात, बहुत सही बात। अफसाना प्रेमचंद से जब शुरू हुआ तो मैं समझता हूँ उर्दू अदब ही वहीं से शुरू हुई हो। बात है, क्या बहुत सही। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको डॉक्टर देख रहे हैं, जी, उसका मिजाज, उसका हाथ पैर जांच रहे हैं। मैं समझता हूँ अफसाना जब जन्म लिया तो जब नक्खात पैदा हुए, तबसरा निगार पैदा हुए। सही बात। तंज़ो मज़ा निगार के जी अलावा जो आपने जी अफसाने की बात की, जी जी तो एक तरफ आप हक्का निगार हैं, जी 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 फिर आप तबसरा निगार भी हैं। जी जी आपका कलम इस उम्र में भी जी नहीं थकता, जी। तो इसका राज क्या है मंजूर साहब? एक तो मैं खुले जहन से रहता हूँ, जी और दूसरी बात है कि कुदरत हो, हसद हो, जलन हो, मुझसे कोई आगे बढ़ रहा है, जी जी मैदान में मेरे से ज़्यादा किसी की शोहरत है, जी, कोई मुझसे अच्छा लिख रहा है, मैं उनसे खुश होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी पिजराई करता हूँ उनकी, और उन लोगों के साथ मेरे हमअसर कलमकारों के सामने मैं समझता हूँ मैं दुनिया का सबसे छोटा और ख़राब कलमकार हूँ। जी जी, तो ये मेरा जो जहन है वो मेरे जहन को ताज़ा रखता है सुभान और तख्लीकी सोते जिसको बोलते हैं सूखने नहीं देता हो। अल्लाह। और एक चीज़ हो, आप इस उम्र में भी, आपकी खुद मिसाल है, इतनी शायरी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में आप पहचान बनाए, आज भी लिख रहे हैं। आप एक आधे घंटे 10 मिनट में इतना बड़ा खाका पेश करें, अभी आप मेरे लिखे, और नसर भी आप माशाल्लाह खूब लिखते हैं। तो इसके माने ये कि आपके जो तख्लीकी सोते हैं अभी सूखे नहीं, जब सूख जाएंगे तो कलम रुक जाता है, रुक जाएगा। और वो अल्लाह का करम है। अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूँ कि मैं अच्छा लिखता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ मैं लिखता हूँ, लिखने के काबिल अभी भी हूँ कि मेरे तख्लीकी सोते जो है तख्लीकी वो सूखी नहीं। जब ज़मीन सूख जाएंगे तो फसल कहाँ से होगी? अच्छा जी मंजूर खान साहब, जी मैं एक हमारे चैनल के बारे में भी जी जी एक सवाल पूछूंगा। जी कई एपिसोड आप फिक्र फन, जी जी शेर और सुखन की मुलाज़ा फरमा चुके हैं। जी जी अदब के हवाले से ये हमारी हाँ जी अदना सी कोशिशें हैं। जी फिक्र फन, शेर और सुखन को लेकर आप अपने तासुरात अगर मैं अगर करें, मैं समझता बहुत बड़ी हिम्मत हूँ, हो समझ गया, हिम्मत अफजाई की बात नहीं है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं इस पे इज़हार ख्याल करूँ। मैं उतना बड़ा अदीब कलमकार नहीं हूँ, मैं फ़िक्र फ़न शेर व सुखन से भी बहुत नीचे हूँ, मैं बहुत कम छोटा हूँ। मैं समझता हूँ एक दो लफ्ज़ में इसका इज़हार करना मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे अपने नाक़िस मुताले या मुशाहदे के मुताबिक हो, इतना जानदार, शानदार और इतना वक़ी और इतना मेयारी उर्दू प्रोग्राम जो सीधी बात का है, मेरे नज़रों में ताहल नहीं गुजरा। इस लिहाज से मैं, मेरे नज़दीक ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का सबसे कामयाब और मकबूल अदबी प्रोग्राम है सीधी बात। और मुझे बेहद मसरत फ़ख्र हो रही कि मैं इस प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, कर रहा बहुत शुक्रिया। आपके इन अल्फाज से बड़ी जी तक़वीत मिलती है हमारे काम को। हमारी ख्वाहिश है वक़ार साहब जी कि आप इस मौके पर हमारे नाज़रीन के लिए जी कोई मुख्तसर सी मिजाइया इंशाइया वाली कोई एक तकरीर या जी जी या एक कोई भी एक इंशाइया है हाथ पे, जी। उसके कुछ छोटे छोटे अच्छा। इक़्तिबास सुनूंगा इंशाअल्लाह। इरशाद, और मेरे इंशाइये तकरीबन 10-15 सफ़े से कम नहीं होते, जी, जी। उतना यहाँ पर वक्त नहीं है। जी चंद एक इक़्तिबासात देता हूँ। जी, इस तंज़िया मज़ाहिया मज़मून का उन्वान है अंदर का हाथ बाहर का हाथ। अच्छा इंसान के सिर्फ 2 हाथ होते हैं, जी, एक दायां हाथ दूसरा बायां हाथ। अच्छा, किसी इंसान के 4 हाथ हों तो इसका शुमार इंसानों में नहीं भूतों में होता है, क्या बात है, क्या बात है। या देवी देवताओं में। जी जी जी, खातून के 12 हाथ हों तो क्या कहने, जी। इसे काली देवी, पेली देवी या दुर्गा देवी बनाकर किसी मंदिर के गर्भगुड़ी में खड़ा किया जाता क्या है। बात है। मंदिरों में अक्सर देवी देवताओं को खड़ा ही रहना पड़ता है। जी, अगर देवी देवता बैठ गए तो मुमकिन है सो भी जाएंगे, क्या बात। अगर सो गए तो भक्तों की जानिब से इन पर लादे गए तलाई जेवरात की हिफाजत भला कौन करेगा। वाह 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 वाह,
लुटेरे लूट के लिए मंदिर मस्जिद चर्च और बंगलों में फर्क थोड़े ही करते हैं। असली सेकुलरिज्म तो चोरों उचक्कों लीडरों पंडितों संतों आमिलों और सियासी कायदन के पास ही देखने को मिलती है। यूं भी देवी देवताओं को तो अपने तलाई ज़ेवरात के सरखा का खतरा सारकीन से ज्यादा पुजारियों से लगा रहता है। जी हाँ, जी हाँ। हम बात कर रहे थे हाथ की निकल गए देवी देवताओं की दुनिया में। खैर हम अपने असल मौजू पर आते हैं। कुदरत ने इंसान को बेशुमार जिस्मानी नेमतें अता फरमाई हैं। आँख कान जुबान दिमाग हाथ पैर, इनमें एक अज़ू भी कम हो जाए या काट कर अलग कर दिया जाए तो माजूर इंसान कहलाता है। खुसूसन इंसानी हाथों की बड़ी अहमियत होती है। अगर इंसान के हाथ की 5 उंगलियों में से एक उंगली ही काट दी जाए या कट जाए तो इंसान हाथ रख कर भी माजूर कहलाता है। जी हाँ, जी हाथ किसी को हाथ देता है तो किसी का साथ देता है। वाह वाह। नीम डॉक्टर खतरा डॉक्टरी मतलब आरएमपी की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों की डॉक्टरी इस धड़ल्ले के साथ चल पड़ती है कि आरएमपी डॉक्टरों के आगे एमबीबीएस अमेरिका एमडी लंदन जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले डॉक्टर्स न सिर्फ खुशहाल हैं, आलिशान अस्पतालों में अपने स्टाफ के साथ मक्खियां मारते हैं। अच्छा। नीम डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक्स पर मरीजों की भीड़ लग जाती है तो लोग कहते हैं फलां डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, इसके हाथ मरीजों के नब्ज पर पड़ते ही मरता हुआ मरीज भी आंखें खोल देता है। मजमून बहुत बड़ा है। मैं चंद हाथों की किस्में बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। अंदर का हाथ। अच्छा। असेंबली में एतमाद का वोट हासिल ना होने की सूरत में हुकूमत बोसीदा इमारत की तरह ढेर हो जाती है। अच्छा। उमूमन लोग समझते हैं हुकूमत गिराने के पसे पर्दा हिज़्ब मुखालिफ लीडरान का हाथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हुकूमत को गिराने में खुद बरसर इख्तियार पार्टी के बागी अराकीन असेंबली का हाथ होता है। इस हाथ को अंदर का हाथ कहा जाता है। वाह 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 वाह। बाहर का हाथ। जी। हमारे मुल्क में फसादात दहशतगर्दी बस हादसा ट्रेन हादसा के पीछे बाहर का हाथ होता है। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हर बड़े हादसे की जिम्मेदारी बाहर के हाथ खुसूसन पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों के हाथ पर डालकर हाथ झाड़ लेने की आदत है। क्या बात है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी बढ़ती हुई महंगाई चोर बाजारी और वबाई अमराज के पीछे बाहर का हाथ होता है। अच्छा। वाह वाह। लंबा हाथ। अच्छा। सियासी और मजहबी असर रसूख रखने वाले सियासी और मिली कायदीन के हाथों को लंबा हाथ कहा जाता है। अच्छा, हाँ। इनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि कर्नाटक असेंबली से पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। बरसों अल्तवा में पड़े हुए काम लंबे हाथों के जादू से मिनटों में ओके हो जाते हैं। मजबूत हाथ। वज़रा समाजी खिदमतगार सियासी असर रसूख रखने वालों के हाथों को मजबूत हाथ कहा जाता है। किसी शहर के कम पढ़े लिखे आवारा किस्म के नौजवान पहले कारपोरेटर बाद में मेयर बन जाते हैं। अच्छा। या किसी सियासी जमात के यूथ लीडर तो समझे इसके पीछे किसी वजीर या सियासी असर रसूख रखने वाली भारी भरकम शख्सियत का हाथ है। इस हाथ को मजबूत हाथ कहा जाता है। गरीब दामादों को कारोबार पर लगाकर इन्हें कंगाल पति से करोड़पति बनाने में इनके दौलतमंद ससुर का दौलतमंद हाथ होता है। दौलतमंद हाथ भी मजबूत हाथ कहलाता है। गैबी हाथ। कल तक जिन लोगों के मकानों में बिछाने के लिए फटी हुई चटाई भी नहीं थी, अचानक ये लोग आलिशान बंगलों और मोटर कारों के मालिक खूबसूरत खवातीन सेक्रेटरी के बॉस कहलाने लगते हैं तो समझे इसके पीछे उल्टे सीधे धंधों या जाली नोटों के कारोबार का हाथ है। ये और बात है कि भोले भाले लोग इस हाथ को गैबी हाथ समझते हैं। साजिशी हाथ। मुस्तैक अदीब शायर या सहाफ़ी को सरकारी एजाज और अवार्ड मिलने वाला होता है कि अचानक ये एजाज अवार्ड किसी गैर मुस्तैक अदीब शायर या सहाफ़ी को मिल जाता है तो समझे इसके पीछे वो हाथ होता है जिसको साजिशी हाथ कहा जाता है। साजिशी हाथ तमाम हाथों के मुकाबले में बेहद खतरनाक होता है। ये हाथ कौम और मिल्लत में रखना डालता है, अच्छे खासे भरे पूरे घर को बर्बाद कर देता है, भाइयों के दरमियान महाभारत की जंग लड़ाता है। इस हाथ की एक खास खूबी ये होती है कि ये अपने खतरनाक मसौमे में कामयाब हो जाता है लेकिन किसी को नजर नहीं आता। आजकल यही हाथ काम करता है। खाली हाथ। खाली हाथ। जी। हमारे मुल्क में लोग दौलत कमाने के लिए अपने हाथों से जायज नाजायज ऐसे ऐसे काम अंजाम देते हैं कि ये लोग ममलकत इस्लामिया में होते तो इनके हाथ ही कलम कर दिए जाते। दौलत कमाने के बावजूद इनके हाथ हमेशा खाली रहते हैं क्योंकि इनकी दौलत बैरून मुमालिक के दौरे करने, बीवियों के लिए बंगले बनाने, बेटियों के लिए दामाद खरीदने, लड़कों की आवारागर्दी का खर्च उठाने पर खर्च हो जाती है। बेचारे करोड़ों रुपए कमा कर भी खाली हाथ ही रहते हैं। अकीदत का हाथ। एक दौर में लोग अपने वालिदैन और उस्तादों का हाथ अकीदत से चूमा करते थे। जी हाँ, जी हाँ। आजकल के नौजवान वालिदैन और उस्तादों का हाथ अकीदत से चूमना तो बड़ी बात है, गुस्सा आया तो इनके हाथ ही तोड़ देते हैं। बुजुर्गान ने दीन और उस्तादों के हाथ अकीदत के हाथ कहलाते थे। अब इस तरह की बातें सिर्फ माजी की बातें बनकर रह गई। अच्छा, ये तो थी हाथ की चंद किस्में। हाथ से चंद मुंसलिक मुहावरे भी खास आम हैं। अच्छा। मसलन हाथ में हाथ देना, अच्छा। हाथ मारना, हाथ खींच लेना, हाथ पर हाथ धरे रहना, आड़े हाथों लेना, बड़ा हाथ मारना,
हाथ बढ़ाना, हाथापाई करना, हाथ मलना, हाथों के तोते उड़ना, वाह वाह लंबा हाथ मारना, हाथ का मैल, हाथ का कमाल, हाथ का जादू, हाथ की लकीरें, हाथ का तमाशा, हाथ की सफाई, हाथ की चालाकी, हाथ फैलाना, हाथ जोड़ना, हाथ तोड़ना, हाथ झटकना, हाथों हाथ लेना, हाथों का हुनर वगैरह। इन महावरों की तशरीह भी लिखना चाहते थे, लेकिन उर्दू अदब के क़ारीन को मुताले के अलावा और भी बहुत से काम हैं। मसलन बीवी बच्चों की फरमाइश पूरी करना, अपनी बड़ाई बगाड़ना, दूसरों की ग़ीबत करना, दोस्तों में डैया मारना। इनके कीमती वक्त का ख्याल करते हुए हम अपना हाथ और कलम खींच लेते हैं। शुक्रिया। वाह, शाबाश। बहुत शानदार है मंजूर वक़ार साहब। यही तो कमाल है आपके कलम का कि आप अपने कारी को अपनी जानिब बिल्कुल खींच लेते हैं। हमारा ये प्रोग्राम वक्त को समेटना जी है। जी जी। अब आखिर में मंजूर साहब, आप हमारे नौआमूज़ कलमकारों ख़ास तौर से तंज़ो मज़ाह निगारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम तो देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक मशवरा दे सकता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि मैं पैगाम दे सकूँ। बात दरअसल है, मैं नए कलमकारों को ये कहूँगा कि सबसे पहले ज़ुबान व बयान पे उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप तंज़ो मिज़ाह निगार बन रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपकी ज़ुबान दकीक ना हो। इतनी ज़ुबान आपकी रवा दवा होंगी, आपके तंज़ो मिज़ाह में वो दिलचस्पी और लताफत आएंगी, ये उसकी पहचान है। और तीसरी बात ये कि तंज़ो मिज़ाह जब लिखते हैं हम तो बेहद मुतालिया, ना सिर्फ किताबों का मुतालिया होना चाहिए, आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों का भी आप मुशाहिदा आपके पास होना चाहिए। मज़दूरों का, लेबरों का और बागवान लोगों का, तरकारी फरोशों का, ऑफिस में काम करने वालों का, काश्तकारों का। तो वहाँ से आप अक्स करेंगे वो चीज़ें ज़िंदगी में। जी हाँ, जी हाँ। ज़िंदगी का जब मुताला करेंगे तो आपको वो बातें तंज़ मिज़ाह में ले सकते हैं। आपको कहाँ तंज़ करना है, कहाँ मिज़ाह पैदा कर सकते हैं। मुतालिया भी बेहद ज़रूरी है कुतुब का, साथ ही साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में घूमना फिरना और उनसे क़ुर्बत आम लोगों से भी पैदा करना, वहाँ से हमको वो चीज़ें मिलते हैं तंज़ मिज़ाह की। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर वक़ार साहब, आपने फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न के लिए अपना कीमती वक्त फ़ारिग़ फरमाया। नाज़रीन, ये थे मंजूर वक़ार साहब जो हमसे महवे गुफ्तगू थे। अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ। बहुत जल्द हम किसी और अहम अदबी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अज़ीज़ बेलगामी और मंजूर वक़ार साहब को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा आए, दावत और हिदायत